I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। I, on behalf of my family, wish you a very happy and prosperous and blessed Christmas. मैं मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सबों को बड़े दिन की बहुतायत से शुभकामनाएं देता हूं। And we are happy to meet in this manner despite of the pandemic and the pain and suffering that is around us. और हमारे इर्द गिर्द जो भी दुख और क्लेश है और ये वैश्विक महामारी के मध्य में भी हम मिल पाए हैं, प्रभु की स्तुति हो। Let us begin with a word of prayer. Father, we come before the throne of grace. We thank you and we praise you for sending your Son Jesus Christ, who came, lived among us, died and rose again so that we will have the life everlasting. And as we meditate, reflect on his coming into this world, you help us to accept him as our Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen. The birth of the Messiah. मसीहा का जन्म। The birth of the Messiah is a very unique event in the history of humanity. और मानव इतिहास में जो मसीहा का जो जन्म है वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अलग ऐसी एक घटना है। The birth of the king of this world. और इस दुनिया के राजा का जन्म। Now when we think of the birth of a king, we look for majesty, power and pomp and show. और हम जब किसी राजा के जन्म के बारे में सोचते हैं तब उसके आजू बाजू में हम शक्तिशाली प्रदर्शनों के बारे में सोचते हैं। However, we see that the king of Jews or the king of the Messiah, the king who was born, was a different kind of a king. परंतु फिर भी हम देखते हैं कि ये जो यहूदियों का राजा था या फिर ये जो मसीहा जो हमारा राजा है, उसका जन्म वो थोड़ी अलग रीति से हुआ। Jesus was born in a very, very different situation and circumstances were very, very different. और यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही अलग परिस्थितियों में हुआ, बहुत ही अलग संघर्षों में उनका जन्म हुआ। Now, when we look at the birth of Jesus Christ, we see that it is not sudden or it is not come to light in a very in a manner which can be called as spontaneous or sudden. अब यीशु मसीह के जन्म की अगर हम बात देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका जन्म एकदम से हो गया या फिर एकदम से ऐसा निर्णय लिया गया कि वो पृथ्वी पर जन्म ले। First thing that we see that his birth was prophesied. सबसे पहली बात हम देखते हैं वो ये है कि उनके जन्म के बारे में पहले भी भविष्यवाणियां की गई थी। The prophet Isaiah, Jeremiah and Micah and many others in the Old Testament prophesied and expected the birth of this Messiah. भविष्यवक्ता यशाया, यर्मिया और मीखा और अन्य जो भी पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताएं हैं, उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां की थी। And scholars opine that there are more than 330 prophecies about the birth of Jesus Christ. और विद्वानों के अनुसार कम से कम 330 अलग-अलग भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म के बारे में पुराने नियम में की गई है। So Jesus was born according to the plan of God. तो इसका मतलब है यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। God planned for the coming of Jesus Christ into this world so that all of humanity can be saved. प्रभु ने ये आयोजन किया कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हो ताकि पूरी मानव जात को बचा लिया जाए। However, he was born during very difficult circumstances in the history of Israel. परंतु इज़राइल के इतिहास में उनका जन्म जो है वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के समय में हुआ था। The people were suffering under Roman Empire. जो लोग थे वो रोमी साम्राज्य के अंतर्गत बहुत ही दुख सहन कर रहे थे। Beside political oppression of the people of Israel, they were also being oppressed by the religious order of the day.
और राजनीतिक रीति से उन पर दबाव या फिर कुचलाव का अनुभव तो वो कर ही रहे थे, परंतु उसके साथ साथ धार्मिक जो उनका जो वर्तुल था उनसे भी उनको दुख सहन करना पड़ रहा था। During the life and ministry of Jesus Christ, he discarded and rebelled against the corrupt religious system of that time. और यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के समय में भी उन्होंने बारंबार जो है उस समय की जो भ्रष्ट जो धार्मिक पूरा ढांचा था उसको उन लोगों ने यीशु मसीह ने उसका विरोध किया। Now Jesus was born through a very, very different genealogy. अभी यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही अलग वंशावली के द्वारा हुआ था। If you see the genealogy, the first we saw that his birth was prophesied. That means it was well planned and prepared. अभी हम पहले ही हमने देखा कि उनके जन्म के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, मतलब बहुत ही पहले से उसके बारे में प्रयोजन और आयोजन किए गए थे। Secondly, we see that God prepared a perfect and great genealogy through which Jesus would be born. और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही महान ऐसी वंशावली तैयार की जिसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म होगा। If you are given a choice to choose a genealogy by which you can be born, which genealogy would you choose? यदि आपको अगर पसंदगी दी जाए कि आप कौन सी वंशावली के द्वारा जन्म लेना चाहते हैं, तो आप कौन सी वंशावली को पसंद करेंगे? I'm sure all of us will choose the greatest of the genealogy available at hand. मुझे पक्का पता है कि हम सभी लोग सबसे अच्छी और सबसे श्रेष्ठ जो वंशावली जो हमें उपलब्ध हो वही पसंद करेंगे। We would choose the genealogy of the best of the people in the world. पूरे विश्व में जो सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ ऐसे लोग हैं उनकी वंशावली हम पसंद करेंगे। There are 4 women mentioned in the genealogy of Jesus Christ, including Mary. It is 5. और मरियम के साथ यीशु मसीह के वंशावली में 5 अलग-अलग महिलाओं का उल्लेख किया गया है। We see the first of these women are Tamar. सबसे पहली जो महिला है वो है तामार के बारे में। Now, when we were talking about the genealogy, what kind of genealogy God prepared for the coming of Jesus? अभी हम जब वंशावली की बात कर रहे थे तो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार की वंशावली तैयार की? Tamar was widowed twice. तामार 2 बार विधवा हुई थी। And she actually, in order to prolong the genealogy of Judah, she disguised herself as a harlot, a prostitute. और अपने यहूदा का जो वंश है वो आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने आप को अपमान उसने ये सहन कर लिया और वो अपने आप एक वैश्या के रूप में सामने आई। And ultimately she offered herself to her father-in-law. और अंत में हम देखते हैं कि उसने अपने आप को अपने ससुर को अर्पित कर दिया। Judah, her father-in-law, married her and begot children. और यहूदा जो उसका ससुर था उसने उसके साथ शादी की और फिर उससे उसको संतान हुई। Is this genealogy a great one? क्या ये वंशावली एक महान वंशावली है? The second woman mentioned in the genealogy of Jesus is Rahab. और दूसरी जो महिला का उल्लेख यीशु मसीह के वंशावली में किया गया है वो है राहाब का। She was a Canaanite woman. वो एक कनानी स्त्री थी। And a famous prostitute in Jericho. और यरीको की बहुत ही प्रचलित ऐसी वैश्यावी थी। She is famous not only as a prostitute, but she was also a liar. और उसको एक वैश्या के रूप में भी प्रचलित नहीं किया गया था, परंतु वो एक झूठी स्त्री थी। So we see a prostitute and a liar in the family tree of Jesus. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के कौटुंबिक पारिवारिक पेड़ के अंदर हम एक वैश्या और एक झूठी स्त्री का उल्लेख देखते हैं। So one can say that great grandmother of Jesus was a famous prostitute in Jericho. तो इसका मतलब कोई ऐसा कह सकता है कि यीशु मसीह का कोई एक पूर्वज जो उसकी दादी थी जो यरीको की बहुत ही प्रचलित ऐसी वैश्या थी। Tamar was a Moabite woman and Rahab was also a Canaanite woman.
तामार एक मोआबी स्त्री थी और और राहाब एक कनानी स्त्री थी। Now the family of tree of Jesus tells us that Jesus includes everyone in his family. अब यीशु मसीह का ये जो वंशावली है वो हमें ये बताता है कि यीशु मसीह अपने परिवार में सब लोगों का शामिल करते हैं। The family tree of Jesus strikes at the root of racism and ethnocentrism. और यीशु मसीह की जो पूरी वंशावली है वो हर एक रीति के जातिवाद को और हर एक रीति के जो विस्तार को पकड़ के चलने वाले लोग हैं उन लोगों को वो तोड़ देती है। This is the genealogy that our Lord and Savior Jesus Christ chose. ये एक ऐसी वंशावली है जो हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने चुनी। The third woman mentioned in the genealogy of Jesus Christ is Ruth. तीसरी जो महिला का उल्लेख जो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में किया गया है वो है रूथ। Ruth was a Moabite woman. रूथ एक मोआबी स्त्री थी And considered as unclean. और उसे अशुद्ध गिना जाता था। Ruth is also mentioned in the genealogy of Jesus. रूथ का भी उल्लेख यीशु मसीह के वंशावली में किया गया है। Tamar was not very a moral woman. तामार जो नैतिक रीति से ऐसी नैतिक स्त्री नहीं थी। Rahab was a prostitute. राहाब एक वेश्या थी। And Ruth was a Moabite woman. और रूथ एक मोआबी स्त्री थी। What a different genealogy. कितनी अलग प्रकार की वंशावली हम यहाँ पर पाते हैं। The fourth woman mentioned in the genealogy of Jesus is Bathsheba. और जो चौथी महिला का उल्लेख यीशु मसीह के वंशावली में किया गया है वो है बत्शीबा। She was a Hittite woman. वो एक हित्ती स्त्री थी। And her story is laden with murder, sex scandal and adultery. और उसकी जो पूरी कहानी है वो तो एक खून और व्यभिचार से भरी हुई ऐसी कहानी है। David, from whose roots Jesus is supposed to be coming from, is a murderer. दाऊद जिसका बीज यीशु मसीह होने वाले हैं, जिसके वंश से यीशु मसीह आने वाले हैं, वो खुद एक खूनी था। What a genealogy! कितनी अद्भुत वंशावली। Bathsheba was a battered woman, a despised woman. बत्शीबा एक प्रकार की नाजायज उसकी स्त्री थी। This is the family of Jesus. ये यीशु मसीह का परिवार है। Do you want to be in the family of Jesus? क्या आप यीशु मसीह के परिवार में शामिल होना चाहते हैं? The fifth woman mentioned in the genealogy of Jesus is Mary. और जो पांचवी महिला का जो उल्लेख यीशु मसीह के वंशावली में किया गया है वो है मरियम। She became pregnant before she was married. और वो तो उसके विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई। You know, according to Jewish law, she should have been stoned to death. और आपको पता है क्या कि यहूदी नियम के अनुसार उसको तो पत्थर मारकर उसका खून कर देना चाहिए था। According to Luke 1:19, Joseph actually decided to divorce her. और लूक 1:19 के अनुसार यूसुफ ने तो ये भी निर्णय लिया था कि वो उसे तलाक दे देगा। These are the circumstances that led to the birth of Jesus Christ, our Savior. और इन सब परिस्थितियों के मध्य में हमारा जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है उनका जन्म हुआ। The circumstances are filled with all kinds of turmoils and scandals. और जो ये सब परिस्थितियां हैं वो अलग अलग प्रकार के दुख और क्लेश और विपरीत परिस्थितियों से भरी हुई है। So, and that is why at the very outset I said that the birth of Jesus Christ and his genealogy is very unique and wonderful. और इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह की वंशावली वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अद्भुत है। Thirdly, we see the announcement of the birth of Messiah. तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की गई थी। And when the birth of Jesus was announced to Herod, he was troubled. और जब ये यीशु मसीह के जन्म के बारे में की घोषणा हेरोद को की गई थी तब वो परेशान हो गया था।
And then in Matthew 2:11 we read that Jesus' parents fled to Egypt. और फिर मत्ती 2 और 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के माता पिता उसको लेकर इजिप्ट मिस्र में चले गए। Again we read in Luke that Herod ordered all the children aged 2 and below to be killed during that time. और लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि हेरोद ने ऐसा आदेश दिया कि 2 साल या फिर उससे कम की उम्र वाले सारे जो पुरुष बच्चे हैं उन सबको मार डाला जाए। Matthew 2:16 we read that there was mourning and weeping in Jerusalem. और हम मत्ती 2 और 16 में पढ़ते हैं कि यरूशलेम में बहुत ही दुख और रोना था उस समय में। Not a good time to be born. एक ऐसा अच्छा समय नहीं है जब कोई जन्म ले। Jesus' birth compelled his parents to go and take refuge in Egypt. और यीशु मसीह के जन्म के कारण उसके माता पिता को मिस्र में जाके रहना पड़ा। What kind of birth is this? ये किस प्रकार का जन्म है? Why did God allow these to happen? परमेश्वर ने ये सब होने की अनुमति क्यों दी? How can we celebrate the birth of Christ during this time of pandemic? और हम यीशु मसीह के जन्म की जो उत्साह है या फिर जो मनाना है ऐसे वैश्विक महामारी के समय में हम कैसे कर सकते हैं? Can we really celebrate? क्या हम सचमुच में इस बात को मना सकते हैं? The message of Christmas during this pandemic is, even though there are troubles, there are sufferings, there is pain, loss of life, there is hope in our Lord and Savior Jesus Christ. और ये जो बड़े दिन का जो संदेश है हम सबों के लिए, भले ही हम दुख में हो, भले ही हम क्लेश में हो, भले ही हमने जीवनों को गुमाया हो, परंतु इन सब के मध्य में भी यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता में हमें आशा है। And this hope makes us to pray to the Lord and cling to the Lord and come back to Him. और इन आशा से हम परमेश्वर को पकड़े रह सकते हैं, उनको जकड़े रह सकते हैं और उनके पास वापस जा सकते हैं। The event of Christmas makes us to understand that God enables His people to bring in His kingdom despite of all troubles and suffering. और ये जो बड़े दिन का जो संदेश है मुख्य रीति से हमें ये भी सिखाता है और दिखाता है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु फिर भी हम लोगों को प्रभु के राज्य में ला सकते हैं। Genealogy of Jesus is not a smooth one. It is filled with troubles and murder and all kinds of problems in morality. और यीशु मसीह की जो वंशावली है वो कोई आसान वंशावली नहीं थी, ये तो मुसीबतों से भरी हुई है, खून से भरी हुई है, नैतिक अराजकता से भरी हुई है। During the birth of Jesus Christ, there were a lot of oppression and all kinds of trouble were faced by the people of Israel. और यीशु मसीह के जन्म के समय में भी इजरायली लोगों को हर एक प्रकार के दुख थे, उनको दबाया जाता था, उनको कुचला जाता था। But Jesus was born. परंतु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। And that makes us to understand that in this life there will be troubles and there will be pain and suffering. और इस बात से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे इस जीवन में दुख तो होंगे, दुख सहन तो करना ही पड़ेगा, मुश्किलें और परेशानियां तो होंगी ही। But life in Jesus Christ gives us hope. परंतु यीशु मसीह में जब हमारा जीवन होता है तो हमें आशा मिलती है। Fourthly, we see that the birth was announced to the shepherds. और चौथी बात हम ये देखते हैं कि ये जो जन्म की जो घोषणा थी वो चरवाहों को भी दी गई थी। We will read about this in Luke chapter 2 verses 8 to 10. और लूक 2:8-10 में हम ये पाते हैं। Now, during the time of Jesus, it was the shepherds were at the very bottom of social ladder. और यीशु मसीह के जन्म के समय में सामाजिक रीति से ये जो गडरिये थे या फिर ये जो चरवाहे थे वो सबसे निचले स्तर पे थे। And shepherding was considered to be a job entrusted to the laboring class. और ये जो गडरिये का जो कार्य था या फिर ये जो पूरी नौकरी थी, काम था, वो एक प्रकार के मजदूर लोगों के लिए रखा गया था अलग से। Jeremiah's opined that the shepherds were deprived of all their civil rights. और यर्मियास नाम का एक विद्वान इस प्रकार से सलाह सूचन देता है कि इन गडरियों को कोई भी रीति के सामाजिक हक नहीं दिए जाते थे।
They were a deprived class. उनको एक निचली कक्षा के लोग गिने जाते थे। However, this was not so during the history of Israel. परंतु इज़राइल के इतिहास में तो ऐसा नहीं था। When the people of Israel were not living as settled community, the shepherds had a very important role to play. और जब इज़राइल के लोग एक जगह पे स्थायी होके एक नहीं रह रहे थे, उस समय में तो इन गडरियों का बहुत ही महत्व था। The whole economy and sustenance of a family depended upon the shepherds. और कोई भी परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था थी या फिर आर्थिक उपलब्धि थी, वो इन गडरियों पर निर्भर थी। They were supposed to be most of the smartest people who would take care of the sheep and just thus take care of the family. और उनको तो सबसे चतुर लोग माने जाते थे, जो लोग एक ही समय पर उन पशुओं का, उन भेड़ों का, बकरियों का भी ख्याल रखेंगे, उसके साथ साथ उनके परिवारों का भी। The shepherds in the Old Testament, ancient Israel, were supposed to give their life and save the sheep. और पुराने नियम के इज़राइल के इतिहास के जो भी गडरिये थे, चरवाहे थे, उनके लिए तो उनकी भेड़ बकरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो अपना जीवन देके पर उनको बचाते थे। But slowly their status deteriorated during the history of Israel. परंतु इज़राइल के इतिहास में धीरे धीरे हम पाते हैं कि उनका जो स्तर था वो नीचे आता गया। There was a transition from animal husbandry to farming. और वहां पर हम देखते हैं कि एक प्रकार का बदलाव हम पाते हैं, जहां पर मुख्य व्यवसाय जो पहले गडरियों का था, अभी खेती बाड़ी पर आ गए। So when they started farming, the role of shepherds became very insignificant. इसका मतलब ये कि जब उन लोगों ने खेती बाड़ी चालू की, तो ये जो गडरिये को, जो भेड़ बकरी जो संभालने का जो कार्य था, वो बहुत ही कम महत्व का होता गया। So they were poor and laboring class of people. तो इसीलिए वो लोग गरीब थे और मजदूरी करने वाले लोग थे। But the good news of the birth of Messiah came to them, and the angelic choir sang to them, announcing the birth of the Lord Jesus Christ. परंतु ये जो दूत थे, परमेश्वर यीशु मसीह की घोषणा करते हुए, गीत गाते हुए उनके पास आए और उनको ये सब बताया उन्होंने। Surprisingly, though, the invitation or the announcement, there are no kings, no priests, no religious leaders. They are missing from the divine list of announcement. और बहुत ही आश्चर्यचकित रीति से हम अगर देखें, तो यीशु मसीह के जन्म की जो घोषणा थी, उसमें कोई राजा नहीं है, उसमें कोई धार्मिक अगुवे नहीं है, उन लोग को इस सूची से बाहर रखा गया है। Although only a few magi knew the birth about Jesus Christ. भले ही कुछ ज्ञानी पुरुषों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता था, Because they were seeking for the truth. क्योंकि वो लोग सत्य की खोज में थे। Because they were seeking for the birth of the Messiah. क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के जन्म की, हमारे मसीहा के जन्म की खोज में थे। All the poor and marginalized of the society find place in the genealogy of Jesus and also in the announcement of Jesus Christ, the birth of Jesus Christ. और हर एक जो दबे और कुचले हुए लोग हैं, सामाजिक रीति से जो निचले स्तर के लोग हैं, वो अपने आप को यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें भी पा सकते हैं और अपने आप को यीशु मसीह के जन्म की घोषणा में भी पा सकते हैं। What a wonderful way to be born as a king. कितनी अद्भुत रीति है कि एक राजा इस प्रकार जन्म ले। And that is precisely the reason why the Jews did not accept Jesus Christ as the Messiah. और बहुत ही स्पष्ट रीति से यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहूदियों ने यीशु मसीह को एक मसीहा के तौर पर नहीं स्वीकारा। Because he was born in a manger. क्योंकि उनका जन्म तो एक गबाड़ में हुआ था। And then he was not born in a palace or was belonging to a very good genealogy. और उनका जन्म कोई बड़े से महल में भी नहीं हुआ था या फिर वो बहुत ही अच्छी कोई वंशावली के भी भाग नहीं थे। He was born in a manger and his birth was announced to the poorest of the society. उनका जन्म तो एक चरनी में हुआ था और उनके जन्म की जो घोषणा है वो सबसे गरीब में गरीब लोगों को की गई थी। You find a Moabite, a Hittite,
woman and a Canaanite woman in the genealogy of Jesus Christ. और हम तो यीशु मसीह की वंशावली में एक हित्ती स्त्री को, मोआबी स्त्री को, कनानी स्त्री को भी उसमें पाएंगे। There were prostitutes and shepherds and lowly class of people involved with the birth of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जन्म के समय में भी हम पाते हैं वहां पर वेश्याएं थी, उसके अंदर उन लोग को शामिल किया गया है, गडरियों को शामिल किया गया है और हर एक निचली कक्षा के लोगों को शामिल किया गया है। And the message is that most flawed and sinful people can be blessed by God and used by God for the extension of His kingdom. और सबसे बड़ा संदेश है यह है कि सबसे पापी लोग और सबसे बुरे और दबे कुचले लोग भी प्रभु यीशु मसीह के और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उनका भी उपयोग हो सकता है। The birth of Jesus Christ strikes at the very root of casteism and racism. और हर एक प्रकार के जातिवाद को तोड़ने वाला ऐसा यीशु मसीह का यह जन्म है। God is for all. प्रभु तो सबके लिए है, and especially for those who are poor and deprived of their rights. और खास करके उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग अपने हकों से उनको दूर किया जाता है। And that is Christmas. और ये बड़ा दिन है। That is our king. वो हमारा राजा है। The king who identifies himself with the sinful and flawed people. एक ऐसा राजा जो अपने आप की पहचान ऐसे पापी और दबे और कुचले लोगों के साथ करता है। The good news is for all of us who think that we are flawed and sinful. और ये सुसमाचार हम प्रत्येक लोगों के लिए है जो लोग मानते हैं कि हम गलतियां करते हैं और हम पापी हैं। If we think that we are flawed and sinful and we are not worthy, we are in the list of divine invitation to be included in the kingdom of God. यदि हम खुद मानते हैं कि हम गलतियां करते हैं, हम पापी हैं, तो याद रखिए कि हम भी उस दैवीय सूची में हैं कि हमें भी निमंत्रण दिया जाएगा कि हम प्रभु के राज्य में अपने आप को शामिल करें। The King Jesus is born today for this world laden with all kinds of suffering, pain and death. यीशु मसीह भी आज हमारे मध्य में इस दुनिया में जन्म लिया है, जो दुनिया दुख से, क्लेश से और परेशानियों से भरी हुई है। Number 5, when we look at the life and ministry of Jesus Christ, और जो पांचवा मुद्दा है, जब हम यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई को देखते हैं, he was called a friend of tax collectors and sinners. और उनको तो वो कर लेने वाले और पापियों का मित्र कहा गया था। One more question I want to ask you. एक और प्रश्न मैं आपको आज पूछना चाहता हूं। How do you would like to be known as friends of whom? आप अपने आप को किन के मित्र कहलाना चाहोगे? You know, I come from North India and then people boast and they lie. Oh, so and so is known to me. So and so, some high ranking police officer or some high ranking politician is my friend. और मैं तो मुख्य रीति से नॉर्थ इंडिया से आता हूं और काफी सारे लोग जो है वो अपने आप की बड़ाई करने में कम नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा व्यक्ति मेरा मित्र है, या फिर ये बड़ा पुलिस वाला मेरा मित्र है, या फिर मेरे पहचान का है, या फिर ये बड़ा राजनीतिक नेता मेरी पहचान में है। People do everything to take a photograph with powerful influential people in this world. और इस दुनिया में लोग कुछ भी करेंगे, कोई भी ऐसे शक्तिशाली या फिर रुतबेदार व्यक्ति के साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए। Jesus Christ came and identified and lived among the most despised of this society. परंतु हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता जो यीशु है, वो जब इस दुनिया में आए तब उन्होंने अपनी पहचान जो सबसे कुचले गई जो जाति थी या फिर जो सबसे कम माने वाले लोगों के साथ अपनी पहचान की उन्होंने। And that is the difference between other kings and our King Jesus Christ. और यही तो सबसे बड़ी तफावत है दूसरे राजा और हमारे राजा यीशु मसीह में। He had no money. उनके पास कोई पैसे नहीं थे। He had no home. उनके पास कोई घर नहीं था। He was followed by the poor and the deprived kind of people. और उनका अनुसरण करने वाले, उनके पीछे चलने वाले लोग तो वो गरीब लोग थे या फिर वो सामाजिक रीति से दबे हुए लोग थे। All kinds of sick and people possessed by the evil spirit. हर एक प्रकार के बीमार लोग और जिन लोगों को भूत लगा हुआ हो वैसे लोग।
These were the followers of initial followers of our Lord and Savior Jesus Christ, despite a very few who were rich and powerful. और यही तो प्राथमिक रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले, उनके पीछे चलने वाले लोग थे। थोड़े बहुत थे जो शक्तिशाली और पैसे वाले थे। He was even abandoned by his disciples. उनको तो उनके खुद के चेलों ने भी त्याग दिया था। They left him when he was suffering on the cross. They left him and started back doing their old profession. और जब वो क्रूस पर थे तब उनके चेलों ने भी उनको छोड़ दिया और वो चेले जो थे वो अपने पुराने व्यवसाय में वापस चले गए। He died between two criminals. और उनका जो मृत्यु है उनको क्रूस पर दो अपराधियों के बीच में रखा गया था। Buried on a borrowed grave. और उनको एक मांगी हुई कब्र के अंदर उनको रखा गया था। But rose from the dead on the third day and rules in the hearts of the billions of people. और परंतु तीसरे ही दिन वो मृत्यु में से पुनर्जीवित हुए और अब करोड़ों ऐसे विश्वासियों के हृदय में वो राज करते हैं। And that is the message of Christmas for us. और ये बड़े दिन का संदेश है हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए। Christmas is for all those who are suffering and who are deprived of their rights. और बड़ा दिन हर एक ऐसे लोगों के लिए है जो दुख सहन करते हैं और जो लोगों को अपना खुद का हक नहीं मिलता है। The people who are suffering and looking for liberation, Jesus comes for those. और वो लोग जो लोग दुख सहन कर रहे हैं और जो लोग छुटकारे की राह देख रहे हैं, यीशु मसीह उनके लिए आता है। There is hope in Jesus Christ. यीशु मसीह में आशा है। There is life and blessedness in Jesus Christ. और यीशु मसीह में जीवन है और यीशु मसीह में धन्यता है। There is equality in Jesus Christ. एक प्रकार का लाक्षणिकता है यीशु मसीह में। The birth of Jesus Christ helps us to understand that there are no borders in humanity. और यीशु मसीह के जन्म से हमें एक और बात समझ में आती है कि मानवता में कोई सरहदें नहीं है। There is no race, caste or nationality in the kingdom of God. कोई भी प्रकार की जातिवाद या फिर राज्यवाद यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य में नहीं है। The birth of Jesus Christ and especially his genealogy celebrates diversity of language, culture and religion. और यीशु मसीह का जन्म और खास करके उनकी वंशावली अलग अलग प्रकार के अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ लाकर उनको शामिल करती है और इस बात को हम मना पाते हैं। The flawed and sinful people find hope and stay in Jesus Christ. गलती करने वाले और पापी लोग यीशु मसीह में एक आशा को ढूंढते हैं अपने आप के लिए। Our world today torn with battles, wars and pandemic and all kinds of suffering and pain, Jesus comes to us to give life and hope. और हमारी ये जो दुनिया जो युद्ध से, क्लेश से, दुख से और इस वैश्विक महामारी से भरी हुई है, यीशु मसीह हमारे पास आता है एक नई आशा और हमें एक उमंग देने के लिए। The birth of Jesus Christ enables us to cross the boundaries of caste, race, religion and culture and embrace everyone in order to establish the kingdom of God. और यीशु मसीह का जन्म हमें हर एक सरहदों को तोड़ने के लिए कहता है, चाहे वो जातिवाद की हो, चाहे वो संस्कृति की हो, चाहे वो धार्मिक हो, और हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए हमें ये संदेश देती है। May the Lord bless you during this Christmas and make you a great blessing as you celebrate Christmas and extend the good tidings to all the people, giving them love, peace and hope. प्रभु आप सबों को आशीषित करें और प्रभु आप सबों को दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनाए जब आप इस बड़े दिन को मनाएं, और अपनी जो बधाइयां है, शुभकामना है, वो हर एक लोगों को उस शांति, आनंद और आशा के संदेश के साथ आप बांटें। May the Lord bless you. Amen. प्रभु आप सबों को आशीष दें। Let us look to the Lord in prayer. Father, we come before your throne of grace and we thank you, Lord, for bringing your Son Jesus Christ amidst us. Thank you, Lord, for the blessed genealogy through which he came. Thank you, Lord, for the announcement of his birth. Thank you, Lord, for his life and ministry.
Thank you, Lord, because He gave hope and life to the people who had no hope and life. Lord, as we celebrate Christmas, Lord, you enable us to be a blessing. Enable us to be bringing peace, love, and joy to all those who need it. Help us, O Lord, to cast out the demons of caste, religion, culture, and race from among us. And enable us, O Lord, to establish your kingdom. We thank you, Father, for this great event, for the event of Jesus Christ. We bless your holy name, Father. And we request you, O Lord, that you continue to bless us and make us a blessing. And now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God, and the sweet but powerful communion of the Holy Spirit may rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen.